अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इधर मुस्कान खान। अच्छा, इसके अलावा और भी यूट्यूब पर ऐसी बातें आ रही हैं कि आपको खतर से बुलाया जा रहा है, सऊदी अरब से बुलाया जा रहा है और तुर्किस्तान से बुलाया जा रहा है, इसकी क्या हकीकत है? ऐसा सब कुछ नहीं है, हम इधर ही है। और बहुत से बातें भी कर रहे हैं कि ये इंडिया छोड़ के चली गई, ऐसा कुछ। ये सब फुल फेक है। जब तक हम आपको नहीं बोलते, जब तक मैं या मेरे बाबा स्टेटमेंट नहीं देते, तब तक आप किसी चीज़ पर यकीन ना करें। अच्छा, और इसके अलावा इस वक्त आपको किसी किस्म का खतरा इसलिए कि ऐसे वीडियोस भी हमने देखे कि यहाँ पर आपका जीना हराम हो चुका है, सुकून तबाह और बर्बाद हो चुका है। अपने आप को आप कैसे महफूज समझ रहे हैं या कुछ आपको खतरा है? देखो, मैं सोच ही भी नहीं थी कि अल्लाह मुझे इतनी इज्जत बख्शेगा। अल्लाह जब इज्जत दिया है तो हिफाजत भी अल्लाह ही करेगा, अल्लाह के ऊपर यकीन है। আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। দেশ এবং দেশের বাইরে দূর দূরান্ত থেকে যে বাজারে এখন এই মুহূর্তে আমার এই ভিডিওটা দেখছেন, সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, আপনারা সকলে ভালো আছেন, কিন্তু আমি ভালো নাই। তার কারণ হচ্ছে মহা বিপদে, কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে সেই ভাইরাল আল্লাহু আকবার স্লোগান দিয়ে পুরো বিশ্বকে কাঁপিয়ে তোলা সাহসী মুস্কান এবং মুস্কানের পরিবার। আপনারা ঠিকই শুনেছেন। আজকে মুস্কানের মুখ থেকে, মুস্কানের পরিবারের মুখ থেকে, তার বাবার মুখ থেকেই আপনাদেরকে সরাসরি শোনাবো, জানাবো যে মুস্কান এবং মুস্কানের পরিবার কতটা বিপদের সম্মুখীন, কতটা মহা বিপদের মধ্যে রয়েছে, কত বড় কঠিন বিপদের মধ্যে মুস্কান এবং মুস্কানের পরিবার, সেটা আপনারা এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখলেই বুঝতে পারবেন। মুস্কানের মুখ থেকেই আমরা শুনবো। তার আগে কিছু কথা বলে নেই। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, এই মুস্কানকে ঘিরে, মুস্কানকে কেন্দ্র করে এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেক ধরনের ভিডিও প্রকাশ হচ্ছে, অনেক ধরনের সংবাদ প্রকাশ হচ্ছে, অনেক ধরনের প্রতিবেদন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এগুলা সবগুলা কি সত্য? না, এগুলো সব সত্য নয়। আপনারা হয়তো ইতিমধ্যে অনেক ভিডিও দেখেছেন যেখানে বলা হয়েছে সালমান খান, শাহরুখ খান এই মুস্কানের পরিবারকে 60 কোটি 50 কোটি টাকা রুপি পুরস্কৃত করেছে এবং গাড়ি দিয়েছে, বাড়ি দিয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু, অনেক ধরনের ভুয়া নিউজ, ফেক নিউজ বানানো হচ্ছে এই মুস্কানকে কেন্দ্র করে, মুস্কানকে ঘিরে। 2টা ভিউ পাওয়ার আশায় ভাই নিজের ইমানটাও বিক্রি করে দেয় এখন ইউটিউব, ফেসবুকের কন্টেন্ট নির্মাতারা। কি বলবো, ভাষায় বলে ব্যাখ্যা করা যাবে না, বোঝানো যাবে না আপনাদেরকে কতটা দুঃখ লাগে যখন এই সমস্ত ভুয়া নিউজ, ফেক নিউজ দেখি। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, এ সমস্ত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুয়া নিউজ, ফেক নিউজ ছড়ানোর কারণে এখন কঠিন বিপদে, মহা বিপদে সেই ভাইরাল আল্লাহু আকবার স্লোগান দিয়ে পুরো বিশ্বকে কাঁপিয়ে তোলা মুস্কান এবং মুস্কানের পরিবার। এখন রীতিমতো কলেজে যাওয়াই বন্ধ হয়ে গেছে মুস্কানের কলেজে যাওয়া পুরোপুরি এখনো বন্ধ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পরে তার লেখাপড়াটা এখন বন্ধ হওয়ার মুখে। চলুন কথা না বাড়িয়ে সরাসরি আমরা মুস্কানের বাবার মুখ থেকে শুনে আসবো, জানার চেষ্টা করব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যে সমস্ত ভুয়া নিউজ, ফেক নিউজ ছড়ানো হচ্ছে এই বিষয়ে তাদের মতামত কি, এটা কতটা সত্য যে সালমান খান, শাহরুখ খান যে টাকা পুরস্কার দিয়েছে 60 কোটি 40 কোটি 50 কোটি রুপি যে পুরস্কৃত করেছে মুস্কানকে, মুস্কানের পরিবারকে, এই বিষয় নিয়ে মুস্কানের বাবা কি বলছে সেটা শুনবো। আর একটা কথা, সেটি হচ্ছে মুস্কানের ভাইরাল হওয়ার পরে তার লেখাপড়ার বর্তমান অবস্থা কি, আপডেট কি, সেটাও জানার চেষ্টা করব। চলুন বিস্তারিত মুস্কান এবং মুস্কানের বাবার মুখ থেকে শুনে তারপরে আলোচনা করি। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुजुर्गान मोहतरम, नाज़रीन किराम, मैं मुफ्ती मंसूर कासमी, इमाम व खतीब मस्जिद उमर फारूक नागमंगला। मैं इस वक्त मुस्कान खान के घर में बैठा हुआ हूँ। आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की। जैसा कि आप जानते हैं, मुस्कान खान के नारे ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, झंझोड़ कर रख दिया है, जिसकी वजह से सारी दुनिया मुबारकबादी पेश कर रही है। और साथ ही साथ जहां पर तारीफ़ें हो रही हैं, वहीं पर बदनाम करने की साजिशें भी रची जा रही हैं, तोहमतें लगाई जा रही हैं, इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मुस्कान खान के घर पहुंच चुका हूं। सबसे पहले आप लोगों को, बहुत सारे लोगों ने जो है अमेरिका से भी फ़ोन किए थे, ऑस्ट्रेलिया से भी फ़ोन आया था और सऊदी अरब से भी फ़ोन आया था, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने जो है मुझे फ़ोन के ज़रिए से आप लोगों को सलाम पहुंचाया है, आप लोगों की मुबारकबादी पेश की है और आपके सारे घराने को बहुत सराहा है। तो
तो मैंने आप लोगों का पैगाम इन तक पहुंचा दिया। आज हफ्ते का दिन है, आज की तारीख है कितना तारीख, 19 तारीख 2 महीना 2022। इस वक्त अब तक जितनी खबरें आपको देखने को मिली हैं मीडिया के अंदर, ये सारी की सारी खबरें झूठी हैं। मैं खुद इनसे ये सवाल करने वाला हूं, ये तमाम चीजें। और मुझे भी मालूम था कि यूट्यूब पर झूठी वीडियोस अपलोड की जाती है, लेकिन अब और अच्छी तरीके से मालूम हो गया। मैंने इतना नहीं सोचा था जितना झूठ बोला जा रहा है। अब तो मैं समझता हूँ यूट्यूब पर आटे में नमक के बराबर जो है सच्चाई बाकी रह गई है। इसके अलावा तमाम की तमाम खबरें झूठी रहती हैं। तो इस वक्त मैं यहाँ पर हाजिर हो चुका हूँ। ये मुस्कान खान के वालिद साहब हैं, बाजू में इनकी साहबजादी बैठी हुई हैं। सबसे पहली चीज, ये आपके ताल्लुक से बहुत सारी वीडियोस अपलोड की जा रही हैं और इस वक्त मेरे हाथ में फोन है, बहुत सारे हैं, मैं इसकी तफसील गिना नहीं सकता। तो उसमें बताया गया सलमान खान की जानिब से 5 करोड़ का इनाम मिला, शाहरुख खान की जानिब से मिला, और फिल्म एक्टर के बहुत सारे नाम लिए, करीना कपूर का नाम लिया और तैयब रजब उर्दुगान का नाम लिया गया। तो क्या इन खबरों की क्या हकीकत है? अस्सलाम वालेकुम। ये सभी हजरत, ये सभी फेक न्यूज़ है। ये यूट्यूब के ऊपर डाउनलोड कर रहे हैं फालतू 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 बोल के। ये सब गलत इन्फॉर्मेशन है। मेहरबानी से इसको सब मत देखो। जो कुछ भी है इंशाल्लाह आपको यूट्यूब में हजरत के तोफ़ैल से इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। हम यूट्यूब में बैठकर लाइव देंगे। जब तक हमारी बात को ना मानेंगे आप मेहरबानी से ये यूट्यूब के ऊपर का भरोसा मत करो। अल्लाह के फजल से अल्लाह ने हम पर रहम खाया है, हम सही सलामत है, खुश हैं। बस आपकी दुआ के लिए मोहताज हैं, बस दुआ करो बस। इसके अलावा यहाँ पर चंद देखिए, यूट्यूब का झूठ बताने के लिए मैं आप लोगों के सामने ये बात कर रहा हूँ। चूंकि हम इनके करीब रहते हैं, 40 किलोमीटर के फासले पर मैं रहता हूँ। इसमें मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, बेशुमार हैं, 2-3 मैं आपको तजुर्बे के हिसाब से और ये बतलाने के लिए कि यूट्यूब पर कितनी खबरें झूठी अपलोड की जा रही हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा है ब्रेकिंग न्यूज, अफसोसनाक खबर, मोदी ने मुस्कान के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। देखें आप, मोदी जी ने तो ट्वीट करके भी शाबाशी नहीं दी, हिम्मत को नहीं बढ़ाया। बहुत बड़ा ऐलान करना तो बहुत दूर की बात। और इसके अलावा शोएब अख्तर ने मुस्कान खान को 7 करोड़ देने का ऐलान कर दिया। ये देखें कितनी झूठी खबरें हैं। तुर्की के वजीर आजम ने मुस्कान खान को 13 करोड़ इनाम दे दिया। अजय देवगन ने मुस्कान खान को 11 करोड़ इनाम दे दिया। कितनी भयानक चीजें। अभी यहाँ देखे, करीना कपूर ने मुस्कान खान को 5 करोड़ इनाम दे दिया। करीना कपूर ने मुसलमानों के दिल जीत लिए, सुभान अल्लाह। ये देखिए फोटो, करीना कपूर की फोटो है। इसके जिस्म पर 5 मीटर कपड़ा नहीं है। एक बाहिजाब लड़की के लिए ये क्यों पैसे देगी? समझने वाली बात है ना। और इसके अलावा दुबई के शहजादे हमदान ने मुस्कान खान को शादी की ऑफर दी। कितनी बेकार किस्म की, बेहुदा किस्म की, सिर्फ अपने व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए। इतना तो मालूम होना चाहिए, जो खबरें झूठी अपलोड की जा रही हैं चंद पैसे कमाने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए, इन लोगों को इतनी भी समझ नहीं, इतनी भी अकल नहीं है। अल्लाह ताला ने मुस्कान को जो इज्जत दी है, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करने की वजह से दी है, सच्चाई के रास्ते पर चलने की वजह से दी है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो इज्जत जो मिलती है वो अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की वजह से आती है, सच्चाई के रास्ते पर चलने की वजह से इज्जत मिलती है। याद रखो ये बात, जो इज्जत, जो रुपया पैसा धोखे की वजह से या झूठ की वजह से हासिल किया जाता है, उसमें बरकत कभी भी नहीं रहती। सारी दुनिया मिल सकती है, लेकिन अल्लाह ताला दिलों का सुकून छीन लेते हैं। ये सिर्फ इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आप चौकन ना रहें। यूट्यूब की हर खबर पर जो आंख बंद कर भरोसा ना करें। मैं आपको बताऊं कितने खतरनाक जो है बना सवार कर थंबनेल बनाते हैं ये लोग, और लोग इसे सच मान लेते हैं। यहां देखिए, हिंदुओं ने अचानक मुस्कान खान को कत्ल कर दिया, मोदी अपनी चाल में कामयाब हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पर बाजू में आप फोटो देख सकते हैं किस तरीके से इंतकाल की बात की फोटो लगाए रखी है। तो किस तरीके से धोखा दिया जाता है। ये असल में चंद चैनल हैं पड़ोस मुल्क पाकिस्तान के, हर जगह में अच्छे भी रहते हैं, खराब भी रहते हैं, लेकिन यूट्यूब पर यह सब कुछ हो रहा है।
या सिद्धू ने दिया, इमरान खान ने दिया, पता नहीं बहुत सारी है, मैं इसे गिना नहीं सकता। बहरहाल अब कुछ बातें आप लोगों से मैं ये देखिए, जैसा कि इनके वालिद ने कहा, इनके ताल्लुक से और भी खबरें अपलोड होती रहेंगी, यूट्यूब पर चलाई जाती रहेंगी, लेकिन जब तक ये खुद आकर वीडियो में नहीं कहेंगे उस वक्त तक आपको किसी भी खबर पर यकीन नहीं करना है। और ये जानते हैं मैं इनके शहर से 40 किलोमीटर के फासले पर रहता हूं, जो खबर होगी ये खुद आकर वीडियो में बोलेंगे। अगर यूट्यूब जो है वीडियो में जब तक आकर ये खुद स्टेटमेंट ना दे उस वक्त तक किसी भी खबर पर भरोसा ना करें। अगर ये इमरजेंसी का मसला है, इंशाल्लाह मैं इनसे राब्ते में रहूंगा, कांटेक्ट में रहूंगा। ये भी मैं जहां पर इमामत करता हूं उस जगह को जानते हैं, तो या तो ये खुद बराह रास्त यूट्यूब पर जो है वीडियो में आकर कहेंगे और मैं मेरे अपने इसी चैनल से जो है उस खबर को अपलोड करूंगा, या नहीं तो मैं जो बात बनूंगा वो इंशाल्लाह सही मानी जाएगी। और दरमियान में वक्तन फवक्तन मैं इनको फोन करके इनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी आप तक पहुंचाऊंगा, सही अपडेट देता रहूंगा। और इसके अलावा मुस्कान खान से आप उम्मत की लड़कियों को कुछ कहें, लोगों की तमन्ना है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके फ़ोन करके पूछा है कि हज़रत जब कभी आपका जाना हो तो उसी तरीके से वो हाथ उठाकर 3 मरतबा नारा पुकारे, तो आप कुछ पैगाम दो, कुछ नसीहत करो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपको एक आइडियल बनाया है, तो आपकी हर एक बात की बहुत बड़ी वैल्यू है। तो आप कुछ पैगाम दो, कुछ नसीहत करो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपको एक आइडियल बनाया है, तो आपकी हर एक बात की बहुत बड़ी वैल्यू है, तो आप कुछ कहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इधर मुस्कान खान, आपसे मैं एक बात बोलूँगी कि पहले तो नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह पे यकीन करें, जो भी फैसला होगा हमारे हक़ में होगा इंशाअल्लाह। सब्र करें, अल्लाह पे यकीन करें और सब्र करें। और जितने भी मुझे सलाम पेश कर रहे हैं बहुत दिल से वालेकुम अस्सलाम, और मैं सबको सलाम बोलती हूँ और बहुत दिल से सबका शुक्रिया अदा गुजारती हूँ कि सब ने मतलब पूरी दुनिया मुझे इतना सपोर्ट कर रही है। सब बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया। और ये फेक न्यूज़ इतना वायरल हो रहा है यूट्यूब पे, मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ, किसी भी वीडियो पे यकीन ना करें जब तक मैं या मेरा बाबा आके नहीं बोलते कि ऐसा है, ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते कि इस चीज़ पर हाँ ऐसा है करके, तब तक यकीन ना करें, तब तक यकीन ना करें। अच्छा, इसके अलावा और भी यूट्यूब पर ऐसी बातें आ रही हैं कि आपको खतर से बुलाया जा रहा है, सऊदी अरब से बुलाया जा रहा है और तुर्किस्तान से बुलाया जा रहा है, इसकी क्या हकीकत है? ऐसा सब कुछ नहीं है, हम इधर ही है। और बहुत से बातें भी कर रहे हैं कि ये इंडिया छोड़ के चली गई, ऐसा कुछ, ये सब फुल फेक है। जब तक हम आपको नहीं बोलते, जब तक मैं या मेरे बाबा स्टेटमेंट नहीं देते, तब तक आप किसी चीज़ पर यकीन ना करें। अच्छा, और इसके अलावा इस वक्त आपको किसी किस्म का खतरा, इसलिए कि ऐसे वीडियोस भी हमने देखे कि यहाँ पर आपका जीना हराम हो चुका है, सुकून तबाह और बर्बाद हो चुका है, अपने आप को आप कैसे महफूज समझ रहे हैं या कुछ आपको खतरा है? देखो, मैं सोच ही भी नहीं थी कि अल्लाह मुझे इतनी इज्जत बख्शेगा। अल्लाह जब इज्जत दिया है तो हिफाजत भी अल्लाह ही करेगा, अल्लाह के ऊपर यकीन है। ये डराते हैं तुम्हें मौत का खतरा है, ये है वो है, हमें कुछ नहीं। मैं अगर डरती तो उधर खड़ती भी नहीं। अच्छा, जिस वक्त आपने नारा लगाया था तो वालिद साहब को इत्तला कब मिली उसकी? मैं नारा लगा के मैं सोची भी नहीं थी इतना बड़ा होगा करके, मैं अंदर चली गई। फिर उसके बाद मेरे फादर ने फ़ोन किया मुझे कि मतलब TV9 पे, ऐसे टीवी पे देखा, फिर फ़ोन किया मुझे, फिर वो आए, बाद में आए वो। अच्छा। वो सब होने के बाद, आप कॉलेज के अंदर जाने के बाद वो अंदर का रिस्पांस कैसा रहा? अंदर का रिस्पांस मतलब मेरे फ्रेंड्स भी नहीं देख कर थे, उन लोगों को भी नहीं पता था कि मैं बाहर क्या करके आई। फिर मैं अंदर गई, फिर वो रो रहे थे, फिर बाद में प्रिंसिपल लेक्चर सब मुझे लेके गए। अच्छा, अब जिस वक्त गाड़ी पार्क कर रहे थे उसके बाद जा रहे थे, तो गाड़ी खड़ा कर जाते हुए आपकी नज़र वहाँ पर जमी हुई थी, तो क्या आपने पहले ही से इरादा कर लिया था कि मुझे वहाँ पर जाकर नारा लगाना है? नहीं, तौबा तौबा, मुझे कुछ भी नहीं था, नहीं पता था। इवन मैं वहाँ उनके सामने गई तब तक मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं उनको बस, मेरे दिमाग में ऐसा था कि मैं देख के चले जाऊँ,
ये सब अल्लाह की रहमत है कि मतलब मेरे मुंह में आया और मैं हाथ उठाई. देखिए यहाँ पर रुककर मैं नाज़रीन को ये बात समझा देना चाहता हूँ, इनका पहले ही से इरादा नहीं था. यहाँ तक कि गाड़ी पार्क करते हुए सामने से गुजरते हुए जब वो गुंडे बिल्कुल सामने आ जाते हैं तो अचानक इनकी जुबान से अल्लाह अकबर बोलकर 3 मरतबा नारा लगता है. देखिए ये भी तो हो सकता था कि ये भी दूसरे लड़कियों की तरह जो है रोते हुए गुजर जाती या नजरों को नीचे करते हुए गुजर जाती, या नहीं तो जब वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे तो ये गाली गलौज भी कर सकती थी, उन लोगों को बुरा भला भी कह सकती थी. जब पहले से कोई प्लान नहीं, अचानक सामने आते हैं तो इनकी जुबान से नारा निकलता है तो ये अचानक नहीं निकलता, इनके अंदर ऐसी चीजें स्टोर की हुई हैं. मैं आप लोगों को कहता हूँ, बर्तन पर कोई चीज रखकर आप चूल्हे पर रखेंगे, क्या उबलेगा? चाय है तो चाय उबलेगी, दूध है तो दूध उबलेगा, पानी है तो पानी उबलेगा, सालन है तो सालन उबलेगा. जो अंदर है वो बाहर आता है. अल्हम्दुलिल्लाह इनके माँ बाप को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ. इनकी वालिदा पर्दे में बैठी हुई है तो मैं इनको, इनकी वालिदा को भी खास तौर से बहुत 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 ज्यादा मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ. वाक़ईतन आपने ऐसे नाजुक दौर में, फितनों के दौर में अपनी लड़की की ऐसी तरबियत दी और इस्लाम की बेस पर ऐसा शुरू से ऐसी उठाई है. जब ये गैरों के मजमे के सामने गई है तो सबसे पहले डटी है, डटकर मुकाबला, और सबसे पहले इनकी जुबान से जो लफ्ज निकला वो अल्लाह अकबर की सदा थी. तो मतलब इसकी जो है खुदा की वहदानियत कूट कूट कर भरी हुई थी, खुदा की बड़ाई इनके खून के खतरे के अंदर बसी हुई थी. इसी वजह से तो अचानक जो है अल्लाह अकबर का नारा निकला इनकी जुबान से. और मुझे पता भी नहीं था कि वहाँ प्रोटेस्ट भी चल रहा है. मैं एकदम गई, फिर देखी वो लोग मुझे रोक रहे, बुरखा काटो. फिर मैं अंदर गई, फिर मुझे बहुत गुस्सा आया कि वो बोले इधर ही काटो. मुझे मतलब तब बहुत गुस्सा आया तो मैं सोची कि देख कर चले जाऊं. मुझे वहां तक जाने तक भी मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उनको घूरती गई. उसके बाद मेरी जबान में आया अल्लाह अकबर. अच्छा माशाल्लाह. फिर उसके साथ साथ फिर ये सामने गई, शुरू में 3 मरतबा अल्लाह अकबर का नारा, आंख में आंख डालकर जो है ललकार कर नारा लगाई. उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने के बाद फिर से जो नारा लगाया, जबकि वो पूरे आपके पीछे हो चुके थे, उस वक्त क्या सोचकर नारा लगाया? मैं उस वक्त अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और मैं सोची कि मैं और अल्लाह को पुकारूं कि अल्लाह की मदद आए मुझे. अच्छा. वहाँ मैं जब तक आई मेरा तो कोई नहीं था, उधर मैं अकेली लड़की थी, मैं आ रही थी और वो और सामने बढ़ रहे थे. मैं जब पुकारी उसके बाद सब दौड़ के आए. अच्छा. देखिए हमने सुना है ना, किस्मत चमकना किसे कहते हैं, बेशक. तो उसकी एक आला मिसाल मुस्कान बन गई. देखो जब ये नारा लगाकर अंदर भी पहुंच चुकी है, इनकी सहेलियों को तक पता नहीं. जब ये लोग जो है क्लास के बाहर निकले हैं तो इनका नाम सारी दुनिया में पहुंच चुका था. तो इसलिए अल्लाह की जात पर हमें भरोसा करना चाहिए और इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह ताला है. किसी की किस्मत चमकाने पर आ जाए तो सेकेंडों में अल्लाह ताला उनकी किस्मत को बदल देते हैं. इसके अलावा एक और बात आपसे मालूम करनी थी. जब आप कॉलेज से निकलकर बाहर आए, अच्छा अंदर जाने के बाद आपके पढ़ाने वाले टीचर्स में से किसी ने आपको ये नहीं कहा कि आपको नारा पुकारने की क्या जरूरत है? नहीं, मतलब किसी को पता भी नहीं था. वहाँ सिर्फ एक पीटी टीचर था और प्रिंसिपल, 2 ही बाहर थे, बाकी सब क्लास में थे और क्लास चल रहे थे. सबको कुछ पता भी नहीं था कि वहाँ क्या हुआ था करके. अच्छा. और इवन मेरे फ्रेंड्स को भी नहीं पता था. वो घर गए, टीवी में देखे, फिर मुझे कॉल किया, मुस्कान ये तुम हो, ये सब कब किया? अच्छा. मतलब वो कॉल किया फिर बाद में. अच्छा. आपको अंदर पहुंचने के बाद डर तो नहीं हुआ? नहीं, मुझे डर नहीं हुआ. तो फिर उसके बाद मेरे फादर आ गए ना. अच्छा. मतलब हाँ, मुझे डर नहीं हुआ. अच्छा. और इसके अलावा आपसे एक बात पूछना था, मेरे ज़हन से निकल रही है. खैर, फिर घर आने के बाद जब सारी दुनिया में आपका नाम रोशन होने लगा तो उस वक्त अपने आप को कैसा फील किया? मुझे फखर घमंड कुछ नहीं, क्योंकि वो लोग मुझसे नहीं उस पुकार से मिलने आ रहे हैं. उस पुकार से मिले तो मैं क्यों फखर करूं? मैं तो अल्लाह के पास शुक्रगुजारी कि अल्लाह ने मुझे चुना उस चीज के लिए. जी देखिए, इसमें भी आप इस बच्ची की दीनदारी को और इनके तकवे को समझ सकते हैं. इनके अंदर जर्रा बराबर भी घमंड, तकब्बुर. आज किसी को कुछ पैसा मिल जाता है तो उसकी जो है लैंग्वेज बदल जाती है, चलने का स्टाइल बदल जाता है, दोस्तों से मुलाकात का अंदाज बदल जाता है, रिश्तेदारी खत्म कर लेते हैं. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ये बच्ची को अल्लाह ताला ने इतनी ऊंची इज्जत दी. देखो अल्लाह किसी को अचानक ऐसे ही नहीं चमकाते. कुछ खूबियां होती हैं, कुछ औसाफ होते हैं
اور اللہ کی مہربانی ہوتی ہے, اللہ کا فضل ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اونچا نام دیا, عزتوں سے نوازا, ساری دنیا جو ہے تعریف کرنے پر مجبور ہے, تو اس وقت جب ان سے پوچھا جا رہا ہے اپنے آپ میں آپ کو کیسا احساس ہوا, تو اس بچی کی زبان سے نکل رہا ہے کہ مجھے جو عزت ملی اسی پکار کی وجہ سے ملی, اللہ کی وجہ سے. تو واقعتاً ان کے تقوی کی دلیل ہے, ان کے ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے مسلمان لڑکیاں یہ کہتے ہیں کہ ہم پردہ کریں گے, حجاب کریں گے تو ترقی نہیں کریں گے. آپ ایسی لڑکیوں کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ نہیں, آپ اللہ پہ یقین کرو, پہلے اللہ پہ یقین کرو, نماز پڑھو اور یقین کرو, اللہ پہ ایک دم سے یقین کرو, اللہ بے شک آپ کو کامیابی دے گا. اچھا انشاءاللہ ضرور. تو میں بھی یہی کہتا ہوں, میں نے جمعہ کے بیان میں بھی یہی کیا کہ ہر مقدس چیز, ہر بابرکت چیز جس کی ویلیو بہت زیادہ ہے تو اسے پردے ہی میں رکھا جاتا ہے. جیسے کہ دیکھو کروڑوں گھر بن چکے ہیں, آئندہ بھی بنیں گے, لیکن غلاف صرف کعبۃ اللہ کو حاصل ہے. بے شک کروڑوں کتابیں لکھی گئی اور بھی لکھی جائیں گی, لیکن غلاف اور کپڑا صرف قرآن مجید کو حاصل ہے. بے شک ہم موبائل خریدتے ہیں تو فوراً اس کے اوپر جو ہے کور چڑھانے کی فکر کرتے ہیں, اس کے اوپر گلاس چڑھانے کی فکر کرتے ہیں تاکہ مارک نہ لگے. تو کیا ایک لڑکی کی عزت, ایک عورت کی عزت موبائل سے بھی کم ہے, گاڑی سے بھی کم ہے؟ تو اس لیے ایک شہرت کی بات ہے, ایک عزت کی بات ہے, ایک موز کا چھلکا جس موز سے ہٹا دیا گیا ہو اور ایک پورے چھلکے کے ساتھ رکھا گیا ہو, تو ہر کوئی چھلکے والے موز کو کھانا پسند کرتا ہے, اس موز کو کھانا پسند نہیں کرتا اس لیے کہ اس میں جراثیم وراسیم بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. ہم کسی قصاب کے دکان کے پاس بھی جا کر جو ہے بکرے کا گوشت لیتے ہیں تو بکرے کی ران بھی اگر لے کر آتے ہیں تو اسے بھی پیکنگ کرا کے لے کر آتے ہیں, پردے میں لے کر آتے ہیں. ایسے لے کر آئیں گے تو ساری جو گلی کے کتے پیچھے لگ جائیں گے. تو اور میں نے جمعہ کے بیان میں یہ بھی کہا کہ انڈین گورنمنٹ نے جو ماسک کو ضروری قرار دیا اور اس میں سختی برتی گئی, اور یہ کہا گیا کہ اگر ماسک کے بغیر کوئی نکلتا ہے تو جرمانہ بھی لگایا گیا. یہ کیوں کی گورنمنٹ نے, حکومت نے کیوں کیا یہ؟ اس لیے کہ ہماری حفاظت کے لیے, قوم کی جانوں کی فکر کرتے ہوئے, قوم کو ایک وائرس سے بچانا ہے, ایک بیماری سے بچانا ہے, تو اس لیے انہوں نے ماسک کو ضروری قرار دیا. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے, قوم سے بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے, بے شرمی کو ختم کرنے کے لیے, زنا اور بدکاری کو ختم کرنے کے لیے نقاب اور برقعے کو فرض کیا. اور جب آپ یہاں سے آپ اپنی زندگی کا کوئی خاص عمل بتا سکتے ہیں جس کی آپ پابندی, مطلب فل پابندی کرتی ہو؟ میں جب کوئی تکلیف میں ہوتی تو آٹومیٹکلی میری زبان پہ اللہ کا نام آتا. میں خود بعد میں سوچتی کہ پہلے تو مطلب اللہ کا نام آتا کہ اللہ پہ اتنا یقین کرو, ہر چیز اچھا ہو یا برا ہو سب اللہ سے ہوگا, سب اللہ سے ہوگا. بے شک اللہ پہ یقین کرو, آپ کو عزت بھی ملے گی, دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی. نماز کی ایک پابندی کر لو, সব মিলেগা. প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, আপনারা মুস্কান এবং মুস্কানের বাবার মুখ থেকে বিস্তারিত শুনলেন, জানতে পারলেন. এখন আপনাদের মতামতটা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানান. দুইটা ভিউ পাওয়ার আশা ভাই, দুইটাকে ইনকামের লোভ এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কন্টেন্ট ক্রিয়েটররা, কন্টেন্ট নির্মাতারা এমন এমন ভিডিও বানায় যেটা দেখলে আসলেই মানুষ চমকে যায়. যেখানে বলা হচ্ছে শাহরুখ খান, সালমান খান কোটি কোটি রুপি পুরস্কার দিয়েছে এই মুস্কানের পরিবারকে, সেখানে বিভ্রান্ত ছড়ানোটাই স্বাভাবিক, আশ্চর্য হয় স্বাভাবিক, অবাক হয় স্বাভাবিক. মানে এত টাকা, এত কোটি কোটি রুপি যখন পুরস্কার পেল মুস্কান, তাহলে মুস্কানের বর্তমান অবস্থা এমন কেন? আসলে কি বলবো, আপনারা কমেন্ট বক্সে আপনাদের মতামত জানান যে এই বিষয় নিয়ে আপনারা কি বলবেন. যারা যে সমস্ত ব্যক্তিরা ফেক নিউজ, ভুয়া বানোয়াট সংবাদ প্রকাশ করে ভিডিও নির্মাণ করে, তাদের বিষয়ে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আপনার মতামত জানাবেন. সকলে ভিডিওটা বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিবেন যাতে সকলের দেখার সুযোগ হয় ভিডিওটা. মুস্কানের পরিবার কতটা বিপদের মধ্যে রয়েছে তাদের মুখ থেকে যেন সকলেই জানতে পারে, এই জন্য ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করে দিবেন. আমাদের চ্যানেলটি যারা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন যাতে পরবর্তী আপডেটগুলো সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়. ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন. দেখা হবে আরও কোনো একটা ভিডিওতে. আল্লাহ হাফেজ. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু. আল্লাহ হাফেজ.